Brahmakumari Prachi is a soft-spoken motivational speaker of Bhilai city who stimulating others with intense positive power in her words that comprise of deep spiritual understanding and positive energy of spiritual practice. She is bringing the change in the lives of thousands of people across the country. She has a specialty in practical application of spiritual knowledge. She has a brilliant career in academics and won several national level competitions. She has completed Bachelor of Engineering with honors. From her childhood, she started Rajyog practice and having profound spiritual experience of Supreme Godfather. Besides her educational qualifications, sports and extracurricular activities, she started deep study in spiritual knowledge, that is, understanding the hidden aspects and its effect on human life from her tender age of 12. As an excellent orator and instrument of supreme power, she has been guiding different peoples across the country, which includes young students, engineers, senior scientists, managers, doctors, and other professionals of various organizations. She is also involved in various creative work and multimedia productions towards the elevated goal of establishing a value-based society. She has been awarded with Dr. Babasaheb Ambedkar Gyan Ratan Award. The organizations that have benefited from her spiritual knowledge include DRDO, IIT Kharagpur, Agriculture Research Institute, Jammu and Kashmir, Ranbaxy Pharmaceuticals, Hero Honda Gurgaon, Eicher Tractors, Perrier, Alwar, Group of Institutions, Kota, Vedanta Aluminium, ACC Bhilai Steel Plant, Southeastern Railway, Tata Refractories, CGEB, ACCL, MCL, SBI, Chitranjan Locomotives, and many more. Thank you for joining such a spiritual personality with us. Now I will hand over this session to you, sister. Please continue this session. Over to you. अगला आता है फाइनेंशियल पावर। लोग कहते हैं अगर ये नहीं है ना तो आपका समाज में कोई रुतबा नहीं है। बैंक बैलेंस हो ना तभी जाकर हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते, और शायद इसीलिए उसे पाने की एक होड़ में भाग रहे हैं। हम इन सब में देखें तो आज हम इतने सारे देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, हम बात कर रहे थे कि हमें आवश्यकता है हम इन बातों को समझें कि ये जो एक्सटर्नल चीजें मुझे दिखाई दे रही है ना, जिनकी तरफ मैं भाग रहा हूं, वास्तव में ये मेरी ताकत नहीं है। ये तो टेम्परेरी है, कभी आता है कभी जाता है। पोस्ट भी परमानेंट नहीं है, धन भी परमानेंट मेरे पास रहने वाला नहीं है। वो मेरी चीज नहीं है। मेरी अपनी ताकत हर परिस्थिति में मुझे अच्छा चलने में मदद करे। जस्ट एनालाइज योर इनर पावर लेवल। अपने अंदर आप इस क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। डू यू गेट टायर्ड इजिली? डू यू गेट इरिटेटेड विथ अदर्स in smallest of things? Is there always an inability to cope with situations? Do you think too much about things you can do nothing about? Do you feel you need more rest than usual? Is there an inability to listen to others' problems and issues? Do you tend to get confused and find it difficult to make decisions? Does your time get wasted in trivial aspects? You feel adjusting with others is impossible? Or do you experience regular irritation? Relations बिगड़ रहे हैं, बातें बहुत छोटी होती है, पर मेरी अंदर की शक्ति कम हो रही है। कहाँ है? क्या घर को ठीक करने की जरूरत है? घर में सदस्यों को ठीक करने की जरूरत है?
अपने वर्क प्लेस में लोगों को ठीक करने की जरूरत है कि मुझे अपने सेल्फ को ठीक करने की जरूरत है? मुझे काम कहाँ करना है? अपने घर पर काम करना है, अपने वर्क प्लेस पे काम करना है, कि मुझे अपने सेल्फ पर काम करना है? वास्तव में बाहर एक दुनिया है, लेकिन उससे भी बड़ी दुनिया मेरे अंदर है, माई ओन इनर वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं अपने अंदर की दुनिया को? बाहर की दुनिया को तो हम कितना अच्छा जानते हैं ना, अंदर की दुनिया आज मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी दुनिया जो आपकी अपनी है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसे आप ठीक नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत सारे लोग हैं ना, पर मेरे अंदर की दुनिया में तो सिर्फ मैं हूं, इसलिए मैं उसे बहुत सुंदर बना सकता हूं। क्या है आपके अंदर की दुनिया में? आपकी सोच, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर मेमोरीज, योर एटीट्यूड्स। हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारी दृष्टिकोण, हमारी स्मृतियां, ये सब मेरे अंदर की दुनिया में है जिसमें हम जीते हैं। और अगर मेरे अंदर की दुनिया स्वच्छ और शक्तिशाली नहीं है ना, तो बाहर की दुनिया में मैं भले अच्छे ड्रेस पहनकर एक नई गाड़ी में बाहर निकलूं, पर शायद मैं कोई भी काम और कोई भी रिलेशन अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निभा पाऊंगा। सो माई इनर वर्ल्ड इज माई पावर। वही मेरी ताकत है, वही मेरी दुनिया है जिसमें हम जीते हैं। दूसरों से बात करते हुए भी आप अपनी स्मृतियों में जी रहे, अपनी सोच में जी रहे होते, काम में, रिलेशंस में। तो इसीलिए जो मुझे वर्क करना है, अपने ऊपर जो काम करना है अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, वो मुझे अपने इनर वर्ल्ड पर करना है। ठीक ऐसे ही आप देखिए, जस्ट एज अ व्हील, एक आप बुलक काट के व्हील को देखिए, वो एक हब जो उसका होता है ना, इट रिमेन्स स्टेबल। जो बीच का हिस्सा होता है ना, सेंटर पॉइंट, वो बहुत स्टेबल रहता है। और इसीलिए जो स्पाइक्स है वो उसके चारों ओर बहुत फास्ट घूम पाते हैं और स्पीड में घूम पाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। इन द सेम वे द सेल्फ इज द हब। वो मेरा अंदर का सेल्फ, वो स्टेबल होना चाहिए। तो बाहर मेरे जितने भी वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बहुत फास्ट और इफेक्टिव मैनर में हम परफॉर्म कर पाएंगे। इसको हम समझे कि आज हमारे चारों ओर एक वर्ल्ड है बाहर में, उसके अंदर मेरा एक सोशल नेटवर्क है, उसके अंदर मैं कुछ अपना कैरियर बनाता हूँ, कुछ अचीवमेंट्स लेता हूँ, उसके भी अंदर मेरा एक छोटा सा परिवार है, और उसके भी अंदर मेरी एक इमेज है जिसे मैं बनाकर उस परिवार में और समाज में बाहर आता हूं। लेकिन जो इमेज मैंने बाहर बनाई हुई है, उसके भी अंदर झांक के देखूं, अंदर मैं क्या हूं। कई बार हम अपनी इमेज कुछ दूसरी प्रिटेंड करते हैं, पर कभी अकेले में बैठते हैं ना, तो मैं अंदर क्या हूं मुझे महसूस होता है। इसलिए वो जो मेरा सेल्फ है, नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई गो इनसाइड, अपने सेल्फ, इनर सेल्फ की ओर चलूं। और जब मैं अपने अंदर चलूंगा ना, तब मैं अपने आप को शक्तिशाली, एम्पावरमेंट अपना कर पाऊंगा। हमारे अंदर में, हमारी कई बार दुनिया में चलते हुए अंदर की शक्तियों को हम भूल जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी शक्ति हमारे मन की है।
कई बार हम उसे इग्नोर करते हैं। क्या हो गया, चल रहा है ना अपने आप, मन तो अपने आप ही चलता है, उसको देखने की क्या जरूरत है। बाहर हम ध्यान देते हैं, मन के लिए कहते रहे चल रहा है, सोचने दो जो सोच रहा है। नहीं, कभी उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो वो सब कुछ अंदर की एनर्जी को खत्म कर रहा है। और अगर अंदर मन में खराबी है तो बाहर वर्ड्स और एक्शंस। अगर मैं रियल में सशक्त हूं, दुनिया में आज सशक्तिकरण की बात हो रही है ना, बट लेट इट स्टार्ट विथ सेल्फ। ब्रह्मा कुमारीज इज एन इंस्टीट्यूशन फेमस फॉर दिस सेल्फ एम्पावरमेंट। माइंड, मेरा अपना मन, वर्ड्स और एक्शंस, ये तीनों हार्मोनाइजेशन में आ जाते हैं अगर मैं रियल सशक्त हूं। जो मन सोच रहा है वही सोच मेरे वर्ड्स में, वही एक्शंस में बहुत प्योरिटी से बाहर आते हैं, और बाहर में वो एम्पावरमेंट दिखाई देती है। अभी आप देखिए, एक एम्पावरमेंट, एक एम्पावर्ड माइंड वो क्या सोचेगा? गुड विशेस फॉर ऑल। मन शक्तिशाली है ना। कमजोर मन नेगेटिव सोचता है, शक्तिशाली मन गुड विशेस रखता है, पॉजिटिव सोचता है, उसमें ताकत है। और जब उसमें गुड विशेस आते हैं तभी एक चारों ओर वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट महसूस करता है, एंड देन आई एक्सपीरियंस पीस। बिना गुड विशेस के आप पीस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। शांति का आधार ही है प्योरिटी, प्योर थॉट्स, दूसरों के लिए प्योर भावनाएं। अगर मेरी भावनाएं ही ठीक नहीं है जरा भी, एक भी व्यक्ति के लिए, तो अंदर एक हलचल होगी। ठीक वैसे ही जैसे आप देखिए कि एक शांत पानी में एक छोटा सा भी पत्ते का एक कणा डाल दो तो वहां चारों तरफ एक रिपल्स आ जाते हैं, हलचल आ जाती है। एक जरा भी दुर्भावनाएं एक के प्रति भी, अंदर की वो ट्रू पीस, सच्ची शांति आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। सो एक शक्तिशाली मन, it have good wishes and so experience comfortable environment, and therefore there is peace. और in turn बाहर जितना अंदर प्योरिटी है माइंड में, उतना वर्ड्स में अप्रिसिएशन होगा। वर्ड्स हिम्मत देने वाले होंगे, वर्ड्स दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले होंगे, and so a relaxed relations, and this is what makes me happy. And in turn, in the more outer world, actions में virtues होंगे। आपको पता हो, एक कमजोर व्यक्ति ही गलत तरीकों का सहारा लेता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति वैल्यूज के साथ चलता है। वैल्यूज को छोड़ना कमजोरी है। मैं अपनी सच्चाई को छोड़ दूं, मैं अपने स्नेह को छोड़ दूं, ये मेरी कमजोरी है। वैल्यूज के साथ चलना ये मेरी ताकत है। एंड इन रिटर्न आई एक्सपीरियंस इजी सिचुएशंस। सिचुएशंस आएंगी, लेकिन अगर मैं इंटरनली एम्पावर्ड हूं और एक्शंस वर्च्यूज के साथ है, वो सिचुएशंस में भी एक ईजीनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। और दिस इज व्हाट मेक्स मी this is what makes me prosper. So now it's time to change करें। नवरात्रि आ रही है ना, एक न्यूनेस की ओर बढ़े, और उसका आधार है
रिचार्जिंग माय इनर पावर्स, अंदर की शक्ति को रिचार्ज करे और बाहर एक नयापन आप अनुभव करेंगे। ऑटोमेटिक लोग वही होंगे, बातें वही होंगी, लेकिन आप अपने अंदर एक नई पर्सनालिटी अनुभव करेंगे। मेहनत नहीं है, जैसे एक मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं ना, ऐसे ही अपने को भी रिचार्ज करना है। लेकिन वो रिचार्ज करने से पहले मैं समझू मुझे कौन से पावर्स अपने अंदर भरने हैं। देखिए, ये जो रिचार्जिंग है, इसका माध्यम है मेडिटेशन, जहां हम उस पावर सोर्स से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। जैसे मोबाइल को भी आखिर पावर सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है ना। तो जब मैं उस पावर सोर्स से कनेक्ट होती हूँ तो मुझे ये 8 पावर्स आते हैं। दीज आर द स्पिरिचुअल पावर्स जो हर एक स्पिरिचुअल बीइंग, हम और आपको जरूरत होती है। और इन्हीं ये 8 शक्तियां हैं। और आपको पता है, इन्हीं अष्ट शक्तियों का गायन हम देवी माँ के रूप में करते, इसीलिए उन्हें 8 भुजाएं दिखाते। सच में कोई माँ के 8 भुजाएं हो नहीं सकती, लेकिन भुजा प्रतीक है शक्ति का। ये वो अष्ट शक्तियां हैं। आइए हम इन्हें बहुत ध्यान से सुने, समझे, और अब समय है इन शक्तियों के साथ चलने का। सबसे पहले पावर टू पैकअप, हिंदी में बोलूं तो समेटने की शक्ति। आप कहेंगे ये कैसा समेटना है? समेटना क्या होता है? जैसे आप जब ट्रैवल के लिए जा रहे होते हैं या कहीं आप गए हो, वहां से लौट रहे होते हो, तो अपना सब कुछ समेट लेते हो ना। ऐसे ही मुझे भी अपने मन और बुद्धि को समेटना आना चाहिए। बाहर से तो मुझे बहुत कुछ करना है, विस्तार ही करना है, पर मेरे मन में जो असंख्य थॉट्स चल रहे हैं ना, एक एक बाढ़ आ गई है अंदर। मेरी बुद्धि न जाने कहां कहां भटक रही है, एकाग्र ही नहीं होती, एक पल में यहाँ, एक पल में वहां, एक पल में वहां। समेटना आना चाहिए। मैं जब चाहूं इसे अपने अंदर ले लूं, अपने अंदर समेट के बैठ जाऊं, अपने को सिखाऊं, अपने को समझाऊं, अपने साथ दिन बिताऊं, कुछ क्षण बिताऊं। जिसके पास ये समेटने की शक्ति है ना, ये एक पावर है। आप जैसे थोड़ी देर के लिए बैठे, समेट ले मन और बुद्धि को, पैकअप कर ले। काम पूरा हुआ, चलो अभी ट्रैवल लाइट। इट हेल्प्स मी टू ट्रैवल लाइट। जीवन के इस यात्रा में भी हल्के होकर बढ़ने में मदद करता है। यही समेटने की शक्ति मुझे सिखाता है, पास्ट इज पास्ट, समेट लिया, बीत गई बात, फुल स्टॉप। शक्ति अगर ये नहीं है ना, तो बीती बातों में न जाने कितना एनर्जी और टाइम बिता देते हैं। फुल स्टॉप, बीत गई बात। शक्ति चाहिए। आगे आप समझेंगे ये शक्ति को और गहराई से, और कैसे आएगी ये शक्तियां। और जैसे पास्ट से हम फ्री हो जाते हैं, एक जैसे ट्रू फ्रीडम हम अनुभव करते हैं। जैसे आप कहीं पर पैक करके अपना सामान चल पड़े, तो वो स्थान पीछे छूट जाता है ना। अब आप आगे बढ़ चुके हो, वो स्थान पर दोबारा पाँव नहीं जाते, छोड़ दिया। ऐसे ही मन, मन की ये ट्रेनिंग है, ये शक्ति मन में आ जाती है। वंडरफुल ताकत है ये शक्ति से हम अपने सारे वेस्टफुल थिंकिंग अबाउट द पास्ट आई पैक अप। सिखा लूं अपने आप को, बीत गई बात, मुझे सिखाने आई थी, सीख लो,
चलिए अभी एक पल के लिए सबसे रिक्वेस्ट है, पीठ को सीधी करके बैठ जाए। चलिए अपने अंदर कुछ पल समेट ले अपने आप को। सारे मन और बुद्धि बातों से अपने आप को समेट ले। भूल जाए कुछ पल के लिए, भूल जाए कुछ पल के लिए सब कुछ। सिर्फ मैं और मेरा जीवन, सिर्फ मैं और मेरा जीवन। जिस जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ, अपने अंदर की शक्ति के साथ। बात करें अपने आप से। मेरे अंदर की दुनिया, चले अपने अंदर की दुनिया में। जहां मेरे अपने विचार, अपनी स्मृतियां, अपनी भावनाएं बात करें अपने आप से कि मुझे अपने अंदर की दुनिया को बहुत शुद्ध, प्योर बनाना है, साफ बनाना है। बात करें अपने आप से। मेरी अंदर की दुनिया यही मेरी अपनी दुनिया है। इसमें से मुझे अपनी सारी पुरानी खराब स्मृतियों को निकाल देना है, तभी तो मैं आगे बढ़ सकूंगा। खुशी खुशी, प्यार से अपने जीवन के एल्बम में से पुरानी खराब फोटोज को निकाल देना है। ईश्वर पिता ने मुझे बहुत सारी बातें, परिस्थितियां, लोग मेरे सामने दिए थे मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए। मैंने सीखा है, शुक्रिया। मेरे पास्ट को थैंक यू, मुझे सिखाने के लिए थैंक यू। ये बातें नहीं आती तो मैं कभी सीख नहीं सकता था। किताबों से नहीं सीख सकता जितना इन परिस्थितियों ने सिखाया है। थैंक्स, थैंक्स टू माय पास्ट for making me a learned, experienced person. दिल से 3 बार थैंक्स दीजिए अपने पास्ट को। Thanks to the Supreme, my Father, for teaching me. अब
आपके सामने आप चलते चलते विजुअलाइज कीजिए एक नदी के पास आप चले जाते हैं और वहां एक नाव आपको दिखाई दे रही है। नाव में कुछ बैग्स रखे हैं और आप अपने सारे पुरानी अनवांटेड परेशान करने वाली सब पुरानी बातों को हाँ अब उस बैग में भर देते हो। एक डालते जाइए, पुराना सारा पास्ट अंदर से निकालते जाइए, सबको थैंक्स देते जाओ। घर पे जो बातें हुई पास्ट में, थैंक्स। एक एक सदस्यों के साथ जो बातें हुई, थैंक्स। निकालते जाओ, बैग में डालते जाओ। आपके बचपन में, बड़े होते, सबको थैंक्स देते जाओ, बैग में डालते जाओ। अपने वर्क प्लेस पे पास्ट में जो बातें हुई, थैंक्स, और बैग में डालते जाइए। मेरे से पास्ट में कुछ गलतियां भी हुई, थैंक्स, मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, जो मैं अब उसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और अब उस बैग को, वो पूरा भर गया है, उसे टाइट ऊपर से बंद करिए और उस नाव में रख दिया है, टाइट बंद करके। अब उस नाव को धीरे से पुश दे दीजिए। नाउ आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं कि वो नाव धीरे धीरे नदी में आगे 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 जाते जाते दूर होती जा रही है मेरे से, दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है और दूर जा रही है। अब नाव छोटी दिखने लगी है मेरे सारे पास्ट की बातों को लेकर। The boat is drifting away, 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 दूर। अब वो नाव भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। So, past is past. Now a new beginning. नई समझ, नई सोच, नई स्मृतियों के साथ। So, this is power to pack up. Next, अभी किया. You let go all your burdens and worries. साथ साथ, you put a paperweight on whatever you do not need to deal with now. उसको पॉज देने की ताकत आ जाती है। जब मैं अपने अंदर जाता हूं तो अपने को बैठ के सिखा पाता हूं कि अभी इस काम की जरूरत नहीं है, इसको अभी नहीं सोचो। ये जब हम बाकी बाहर की बातों से अपने आप को समेटते हैं अपने अंदर, तब अपने को सिखा पाते हैं। So this is power to pack up. The first and very important power. इससे शुरू होती है मेरी शक्तिशाली जीवन। जिसके पास समेटने की शक्ति नहीं है, बाहर से मैं अंदर चलूं,
बैकअप कर सकूं, तो शक्तिशाली जीवन की शुरुआत नहीं होगी अगर ये ताकत नहीं है तो। अभी किया ना, समिट के मंदिर गए, अपने पास्ट को टाटा बाय बाय कर दिया, अपने को सिखाया, समझाया। ये शुरुआत है मेरी शक्तिशाली जीवन की। एंड देन comes the second power, and this power is power to tolerate, सहन करने की शक्ति। सहन क्या करना है? दो चीजें होती है, इसे हम ध्यान से समझेंगे। कई बार ये बात बहुत लोगों के मन में आता है, जब कोई सामने वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा होता है या उल्टा बोल रहा होता है, हम चुप रहते हैं और सोचते सहन कर रहे हैं। फिर एक मन में प्रश्न आता है, कब तक सहन करेंगे? और 4 बारी तो सहन कर लिया, 5वीं बारी तो एक वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, एक ज्वालामुखी फूट पड़ता है। तो वास्तव में वो सहन करना नहीं था, वो तो मन को आप दबा रहे थे। मन का दमन नहीं, सहन करना तो एक शक्ति है, बहुत सुंदर शक्ति है। क्या होता है सहन करना? इसको गहराई से समझ ले तो आसान हो जाएगा। सहन करना माना ये एक ऐसी शक्ति है, जब मैं अपने अंदर अपने आप को जब समेटती हूँ, अपने अंदर की दुनिया में जाती हूँ, तो अपने आप को याद दिलाती हूँ तुम कौन। हम इस घर के फाउंडेशन हैं, हम ईश्वर के बहुत प्योर चाइल्ड हैं, हम ईश्वर के बहुत पावरफुल चाइल्ड हैं। हम इस दुनिया में किसी कार्य अर्थ आए हैं, उद्देश्य है मेरा। याद दिलाती हूँ अपने आप को, अपना सेल्फ एस्टीम। आई एम अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम प्लेइंग दिस रोल। सब रोल प्ले कर रहे हैं। जिस दिन रोल पूरा होगा कोई नहीं रुकता। एक डीप अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए जब सामने वाला भी नाराज हो रहा है या कुछ अपशब्द बोल रहा है या अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो मैं उसे भी समझ पाती हूँ, ये भी अपने रोल प्ले कर रहे हैं। एंड आई एम अ प्योर चाइल्ड, मुझे उसे मदद करनी है। उसे लव चाहिए, उसे पीस चाहिए। उसके अंदर शांति नहीं है तब तो अशांत हो रहा है। यस, आई हैव टू गिव, आई अंडरस्टैंड देम। अपने एक एलिवेटेड पोजीशन में जब हम स्थित रहते हैं, तब हम दूसरों को समझते हैं, पेशेंस आता है, दूसरों के लिए लव आता है। इमटेरियल, सामने से मुझे क्या मिल रहा है। इसी का उदाहरण है एक फल से लदा हुआ वृक्ष, उस पर पत्थर मारो तो वो फल ही देता है। सहन करना मतलब पहले खुद को फल से लादना पड़ेगा, अर्थात खुद को एलिवेटेड स्थिति में स्थित करना। अंदर चलो, अपने को याद दिलाओ, हु आर यू? अ वेरी पावरफुल एक्टर playing this role. Everyone is playing their role. मुझे अपने पावर, अपनी प्योरिटी, अपने पीस के साथ अपना रोल प्ले करना है। और तब सामने वाले की बातें मुझे जरा भी हर्ट नहीं करती है, पर मैं उसको वही लव, वही सहयोग देती हूँ। बल्कि अब मुझे महसूस होगा, उससे नफरत नहीं आएगी, पर उसको हेल्प करने का मन होगा। और ये ख्याल तो दूर है, सहन कब तक, वो तो सोच ही नहीं आ सकती है। बिकॉज आई एम इन एन एलिवेटेड स्टेज। दिस इज पावर टू टॉलरेट। ये आता है राजयोग मेडिटेशन से। यू रिमेन अनअफेक्टेड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। बातें आती है, आई एम इन एन एलिवेटेड स्टेज इनसाइड। You respond to challenges with a positive frame of mind. No irritation, annoyance, nothing. In return, I am giving only love, pure, good wishes.
That is power to tolerate. जरूर हम सब अगर थोड़ा समय अपने आप को दें, डेली एटलीस्ट सुबह 15 मिनट, 10 मिनट, सुबह खुलते ही मात्र 10 मिनट का समय अपने लिए, आंख खुलते ही, वो समय है जब हम अपने आप को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। उस समय अगर पॉजिटिव प्रोग्राम दे दिया, हुए माय, अंदर चलो, अपने आप को एलिवेट करो, दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट द डे। याद कीजिए, सुबह सुबह जब कोई गाना सुन लेते तो सारा दिन गुनगुनाते। इट गोज इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए कहते सुबह किसका चेहरा देखा था। कभी सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। आजकल तो खैर अवॉइड कर रहे हैं इस कोरोना के टाइम पर, बस सुबह सुबह नो मोबाइल, नो न्यूज चैनल। बाद में दिन पड़ा है ना उसके लिए। मॉर्निंग का 10 मिनट्स, सिट विथ योर सेल्फ, वॉश योर फेस, सिट विथ योर सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन म्यूजिक्स है, इवन मेडिटेशन गाइडेड कमेंट्रीज है, आपको हेल्प करेंगे। और एक बार आप अपने एलिवेटेड स्टेज में स्थित हो गए, it's easy to tolerate. Away from the irritation and annoyance, I respond positively. I only give. Third power. It's power to accommodate. हिंदी में बोले तो समाने की शक्ति, समाना। आप देखोगे जैसे एक विशाल सागर होता है ना, सागर में कितने जगह की नदियां आकर मिलती है, और वो जो नदियां है अपने साथ क्या ले आती है, पानी में मिला हुआ कितना मैल, कितनी गंदगी। सोचो, इतनी सारी नदियां कितनी गंदगी लेते हुए सागर में डाल देती है। और सागर कभी गंदा दिखता है? क्यों? क्योंकि जो उसके काम का नहीं है वो उसे साइड कर देता है, और जो बाकी बातें हैं वो उसके नीचे तले में समा जाती है। पता ही नहीं पड़ा कितना कुछ गंदा आया, एक चीज कोई दिखाई नहीं देगी। सागर वर्णन नहीं करता, इतना मैल, इतनी गंदगी मेरे में डाल रहे हो। उसका स्वरूप जरा भी दिखाई नहीं देगा उस सागर के पानी में। काम की चीज नहीं है, साइड कर दिया, बाकी नीचे समा गया, पता ही नहीं पड़ा। ऐसे ही दुनिया में भी बहुत सारी बातें जो आपको पसंद नहीं है ना, वो आपके पास आएंगी। चाहे लोग सुना के जाएंगे, चाहे कोई परिस्थिति के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। संभालो। कोई कुछ सुना के जाता है ना इधर उधर की बातें, एक तो उसे अवॉइड कीजिए, कभी नहीं सुनना है मुझे। मैं कोई डस्टबिन हूं? चलो वो सागर तो अपने आप को अवॉइड नहीं करा सकता ना, पर कुछ हद तक हम तो अपने आप को अवॉइड करा सकते हैं ना। इसकी बात उसकी बात, एक गॉसिपिंग, किसी की अच्छी बातें सुनो ना। अगर कचरा अपने अंदर डालेंगे ना, एक तो वैसे ही मेरा मन अशांत होता है, और कचरा डाल देंगे तो बेचारे मन का क्या होगा। मन खराब हो गया तो जीवन का क्या होगा। व्रत ले, नवरात्रि आ रही है ना, व्रत लेते हैं ना, उपवास रखते हैं ना, वो उपवास तो केवल खाने पीने का होता है, पर असली शक्ति आती है, असली व्रत रखना है हमें। वो व्रत, वो संकल्प जो मुझे ऊपर वास यानी ईश्वर के पास वास करना सिखाए।
ईश्वर को शुद्धता पसंद है, सच्चाई पसंद है, व्रत लो। किसी की अशुद्ध बातों को नहीं सुनना है। मेरी फैमिली है ना, किसी में कोई गलत है बातें, ओके, मैं क्या करूं उसे ठीक करने के लिए, ये सोचना है। इधर उधर फैलाने की क्या जरूरत है। और पता है क्यों फैलाते? सोचते दूसरों को हम उसकी किसी और की कमियां जब सुनाते ना तो सोचते मैं तो इससे अच्छा हूं ना, देखो वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। अपने आप को महान समझते हैं कहीं ना कहीं वर्णन करते हुए। लेकिन इस विद्यालय में हमने एक चीज सीखा है कि महानता दूसरों की बुराई वर्णन करने में नहीं, लेकिन उस बुरे को भी मैंने कितना अच्छा बनाया है, मैंने क्या मदद की उसको अच्छा बनने में ना, ये तो मेरी महानता है। संभालो। किसी ने कुछ कहा भी तो इधर उधर वर्णन नहीं करो। प्यार है ना हर एक के लिए, उसको मदद करना है अच्छा बनने के लिए। जैसे एक माँ का प्यार गहरा होता है ना, तो बच्चे उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते। आजकल के बच्चे बड़े हो जाते, किसी को कुछ नहीं समझते, माँ के साथ दुर्व्यवहार भी करते। पर माँ का प्यार इतना गहरा है, जैसे सागर गहरा होता है ना तभी समा पाता है। माँ का प्यार इतना गहरा है जो उन सब बातों को समा लेता है, उस व्यवहार को भी समा लेता है, और ऊपर से रिटर्न में प्यार ही देती है। समा लिया, समाना मना, फिर दोबारा से कभी वर्णन भी नहीं, कभी उस चीज का स्वरूप भी कभी चेहरे पे दिखाई नहीं देता, शब्दों में दिखाई नहीं देता, समा गया अंदर, पता नहीं कहाँ चला गया, गहराई में उतर गया, खत्म हो गया। ऐसे अगर कोई कुछ कहे भी ना, संभालो, हर एक के प्रति प्यार मेरा बहुत गहरा हो, मेरे अपने हैं, अनकंडीशनल लव। जितना ये समाने की शक्ति होती है ना, इट मेक्स माई लाइफ इजी। एक ब्रॉड माइंडेडनेस आता है जीवन में, डेप्थ फील करते हैं, सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्यार है ना गहरा, मुझे हर एक की मदद करनी है। Like the ocean accepts all that flows into it, I also accommodate all that happens. You accept and encourage the presence and idea of others. दूसरों को भी स्वीकार करना तो उनके आइडियाज को भी स्वीकार करना। संभालो। संगठन एक हमारी टीम भी तभी बनती है जब हम उसमें एक दूसरे को समाते हैं, तब हम एक दूसरे का साथ अच्छे से लेकर चल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। जितनी सोच में गहराई है, जितनी स्नेह में गहराई है, जो हम महसूस करते हैं कि राज्यों का मेडिटेशन से जब वो सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो प्यार के सागर के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते ही प्यार उमड़ पड़ता है अंदर, भर जाता है मन प्यार से। वो ईश्वर का अनकंडीशनल लव प्रेम से भर देता है, सबको रेडिएट करते हैं वो स्नेह, एक्सेप्ट करते हैं। क्या हो गया किसी में नेगेटिविटी है तो व्रत ले, आज से नवरात्रि आ रही है ना, सच में ये शक्तियां अपने अंदर आ जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें अगर मैं व्रत लेकर शुरू करूं, आप अपने अंदर शक्ति की आज से महसूस करेंगे। नेक्स्ट, चौथी शक्ति है पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति। परखना बना, जैसे एक हीरे की परख
जौहरी कोई होती है। आप देखिएगा, सरस्वती माँ का जो वाहन है ना, हंस, हंस की एक बहुत वंडरफुल विशेषता होती है। आपको पता है क्या? उनमें एक विशेषता होती है परखने की। आप उनके सामने, हंस के सामने में हीरा, मोती, पत्थर, कंकड़, कांच के टुकड़े आप रख दीजिए, उसमें से वो मोती चुग लेगा। मोती और पत्थर में वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर लेगा। एक जैसे दिखते हुए में से भी वो मोती चुग सकता है। वो परख है उसमें। क्यों है वो परख पता है? क्यों इसीलिए उन्हें सरस्वती माँ का वाहन दिखाया है। एक क्लियर एंड क्लीन इंटेलेक्ट। जितनी नॉलेजफुल बुद्धि है ना, बुद्धि में स्पष्ट समझ, परख होनी चाहिए, क्या सही क्या गलत, बहुत स्पष्ट गहरी। आज सबसे ज्यादा दुनिया में यही प्रॉब्लम है, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैडम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही। हेलो। वो ज्ञान हमारे इंटेलेक्ट को क्लीन और क्लियर बनाता है, और तब हम एक ऑब्जर्वर की तरह बैठकर सही रीति हम परख पाते हैं। वो जो मेरी माइंड की क्लैरिटी है, वो मुझे परख दिखाती है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है और क्या डिस्ट्रक्टिव है। कई बार हम कुछ चीजों में ऐसे आगे बढ़ते हैं और अपने भाग्य को खराब कर देते हैं, अपने भविष्य को खराब कर देते हैं। गलत चीजों का सहारा ले लिया, गलत आदतों का सहारा ले लिया, गलत सोच का सहारा ले लिया, भविष्य गया। कर्म बिगाड़ दिए, कर्मों का फल क्या मिलेगा? मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, सिर्फ वर्तमान में नहीं, भविष्य भी। वर्तमान में पैसे तो कमा लिए, गलत का सहारा लेके, सोचा बेनिफिट तो मिला, वो बेनिफिट नहीं, पर आगे तक के लिए आपने अपने बहुत बड़ा घाटा कर लिया। हम कई बार कहते हैं, गलत तरीके से कमाया धन कभी भी घर में सुख नहीं लाएगा। ये तो दुनिया में आप उदाहरण देख रहे हो। तो सिर्फ वर्तमान का नहीं, भविष्य मेरा बेनिफिशियल रहे, हमेशा मेरा कल्याण रहे, परख चाहिए बुद्धि की। क्या सही क्या गलत, लोगों की भी परख चाहिए, किसके साथ मुझे कैसे चलना है। सबके साथ एक जैसा नहीं चला जाता, हर एक का स्वभाव संस्कार अलग है ना, मुझे मिला के चलना है ना सबके साथ, परख चाहिए। और पता है, मुझे समय की भी परख चाहिए। समय कह रहा है अब मुझे शक्ति, अंदर की शक्ति भरने की जरूरत है। समय की परख चाहिए। समय को सही रीति परख ले तो सही काम कर पाते हैं, ये भी परख चाहिए। तो जितना क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट होगा ना, ज्ञान युक्त बुद्धि होगी ना, उतनी समझ पाएंगे। इम्प्योर बुद्धि कभी भी सही परख नहीं कर पाएगी, सही गलत सही परख नहीं सकती। और जितनी परख, नेक्स्ट शक्ति है डिसीजन मेकिंग पावर। जितना सही रीति परखा है, तभी सही रीति निर्णय कर पाएंगे। अभी
ये डिसीजन मेकिंग पावर हमें हर कदम पे चाहिए ना। सुबह उठते हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिलेशंस में किसके साथ कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। ये डिसीजंस बहुत बड़ी शक्ति है, डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना। सरासा गलत डिसीजन न केवल मेरा लेकिन मेरे साथ जुड़े कितने लोगों का नुकसान कर देता है। एक गलत डिसीजन न केवल मेरा लेकिन मेरे से जुड़े कितने लोगों का नुकसान कर देता है। और कई बार तो हमें क्विक डिसीजन देने पड़ते हैं ना। ये डिसीजन पावर आती कैसे? आप देखेंगे ना, न्याय की देवी जो होती है ना, उसके हाथ में तराजू दिखाते हैं, लेकिन वो ये न्याय तभी दे पाती है जब उसके आंख में आप देखोगे पच्ची बंधी है। ये निशानी है अनबायस्ड, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, किसी के तरफ नहीं, एक डिटैच्ड होकर अपनी बुद्धि से समझे। न केवल मैं, और अपने से भी अटैच नहीं। कई बार हमारे डिसीजन कहीं ना कहीं स्वार्थ लिए हुए हो जाते हैं। नहीं, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर जैसे मैं अपने को भी देख रही हूँ, बिकॉज आई एम प्लेइंग अ रोल ना। मेरा रोल ठीक है, अपने को भी तो देखना है डिटैच होकर। तब हम एक एक्यूरेट और बैलेंस्ड हम डिसीजन दे पाते हैं। आगे हम चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है पावर टू फेस। अभी देखें विश्व पर कितना बड़ा एक चैलेंज आया हुआ है। कईयों के घरों में, परिवारों में, करीब करीब हर एक के घर में कहीं ना कहीं जुड़े रिलेटिव्स का इस महामारी ने उनसे अलग कर दिया है। बहुत बड़ी एक विपदा आई हुई है, फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज फाइनेंस सेक्टर पर आ गया है। इन सब के बीच में ये तो ऐसी अनेक बातें रिलेशंस में भी आती है ना। कोई प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो, बहुत सारी बातें आएंगी। फेस करने की पावर, सरा हिलू नहीं, ना मन की ताकत कमजोर हो, ना मन का उमंग उत्साह कमजोर हो। उमंग भी कम नहीं, शक्ति भी कम नहीं, उत्साह भी कम नहीं। किन बातों में दम है जो मेरे उमंग और उत्साह को खत्म कर दे? वो है ताकत सामना करने की। सरा ना हिम्मत कम होवे, ना उमंग कम होवे, ना खुशी कम होवे, तब है ताकत फेस करने की। वो करेज, वो करेज आती है सत्यता से। जो गलत होगा ना, उसके सामने फेस करने की ताकत नहीं आएगी। और जो सत्य के साथ है, जो ईश्वर के साथ है, उसमें आती है ताकत फेस करने की। जैसे एक बच्चा है ना, वो मान लो रात के अंधेरे में एक जंगल से गुजर रहा है, डरेगा। एक छोटी छोटी पत्तों की आहट भी उससे परेशान करेगी, भयभीत करेगी। पर अगर मान लो अगले दिन वो फिर उसी जंगल से गुजर रहा है, वही रात का समय है, पर आज वो नाचता गाता चल रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि आज उसने एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ा हुआ है।
उसे वह नहीं है। ऐसे ही हम जितना परमात्मा उस सत्य के साथ होते हैं ना, तब एक अलग विचित्र ताकत के अनुभव हम करते हैं। आई बिकम फियरलेस। गलत हूं तब मेरा नुकसान हो सकता है, सच का तो कभी नुकसान नहीं होगा। हिलेगी डुलेगी जरूर, निर्भय रहिए, कभी कुछ गलत नहीं होगा। With this power to face, you confront challenges with faith and courage. विश्वास और शक्ति के साथ। विश्वास है मुझे अपने आप पर, विश्वास है मेरे खुदा पर। ये बातें बहुत छोटी है, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। मेरे पास शक्ति बहुत बड़ी है, अपनी शक्ति पर विश्वास। जहां सामना करने की शक्ति है ना, वहां हम बहाने नहीं बनाते। ऐसा हो गया ना इसलिए मैं ऐसा हुआ। नो एक्सक्यूजेस। यू लिव बाय ट्रूथ विथ करेज। और निशानी सुनाई, ना हिम्मत कम होगी, ना उत्साह कम होगा। हर बात का सामना उसी ताकत के साथ। और एक वंडरफुल शक्ति है अगली, कॉपरेशन। एक को सहयोग दूं, दूसरे को नहीं, ये कोई शक्ति नहीं। आज के समय में जो मुझे पसंद है मैं उसको सहयोग दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। पर आप अगर रियल में शक्तिशाली है ना, वो सहयोग की शक्ति है, सबको देंगे। सूर्य के पास शक्ति है तो सबको देता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिखाया है, देखिए। वो आपस में बंधे हुए हैं और उन्हें जानवर और उन्हें चारा खाना है। दोनों जोर लगाते हैं, मैं इधर से मैं खाऊं, वो कहता है मैं खाऊं। उस जोर लगाने में दोनों गिरते भी हैं, आखिर नहीं मिलता और दोनों मायूस से बैठ जाते हैं। भूल गए, अरे दोनों मिलकर एक साथ खा लो, फिर जाकर दूसरी तरफ खा लो, डबल मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। एक साथ एक दो को कॉपरेट करके चलो, स्वार्थी न बनूं, मैं ही बढ़ूं। ये सेल्फलेसनेस, ईगोलेसनेस, ये मुझे सहयोग देने वाला। മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. Now, എന്നും coming, അഡ്മിഷൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും. Please, Dr. anything? Sri Kumar, mute yourself. सो अभी तक हमने कौन कौन सी शक्तियां देखी, अभी उसको हम रिवाइज करेंगे। लेकिन लास्ट हमारे, दिस इज द 8th पावर। क्या लिखा है ये? पावर टू विथड्रॉ। और उदाहरण क्या बना हुआ है? कछुए का। आपने कछुआ देखा होगा, चलो सुना होगा कि जब वो चलता है ना तो हाथ पैर और मुख निकाल कर चलता है, लेकिन जब उसे चलने की जरूरत नहीं है ना तो वह सब कुछ समेट कर बैठ जाता है अंदर। और पता है, जब वो सब समेट के अंदर बैठ जाता है ना, तब उसके ऊपर से एक हाथी भी उसके ऊपर पैर रख दे ना, पैर रखकर गुजर जाए, उसे कुछ नहीं होगा। फिर से सुनिए, जब वो समेट लेता है ना, तब एक हाथी भी उसके ऊपर पैर रखकर गुजर जाए, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसने समेटा नहीं है, अंदर विड्रॉ नहीं किया है, और उसके हाथ पैर बाहर है, और तब अगर हाथी उसे छू ले ना, छू ले, तो वो उसके भार से नुकसान हो सकता है उसे। ये वंडरफुल चीज है कि व्हेन आई विड्रॉ, हमें भी ये मन और बुद्धि मिले हैं, दो चीजें। सारा दिन बुद्धि दौड़ती है ना,
यहाँ वहां, ये करना है, वो करना है, सब करना है, आगे तो बढ़ना है ना। लेकिन जब समय मिले तो सब कुछ विड्रॉ करके अपने अंदर की दुनिया में बैठ जाइए। मैं आपको गारंटी करती हूँ, जिसको ये विड्रॉ करना और अपने अंदर दुनिया में बैठना आता है ना, फिर बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए हाथी जैसी, पर उसको नुकसान नहीं करेगी। आई बिकम इंट्रोवर्ट। अपने अंदर की दुनिया में जाकर मैं अपनी सत्यता को टच करता हूँ, सत्य ज्ञान की समझ अंदर में दोहराता हूँ, अपने अंदर की दुनिया को क्लीन करता हूँ। आई फील मोर कंटेंटेड, आई फील मोर क्वाइट विद इन। फिर बड़ी से बड़ी बात कुछ नुकसान नहीं करेगी। अपने अंदर जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए अपने आप को सिखाओ। ये सब रोल प्ले कर रहे हैं ना, उनका पार्ट है ऐसा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको रोल मिला है। ईच वन इज एन इंडिपेंडेंट एक्टर। जिस दिन रोल पूरा होगा चले जाते हैं। दे आर एक्टर्स। आई एम अ हीरो एक्टर। मुझे उनके हर एक चीज में उनके साथ चलना सीखना है। मैं उनको नहीं बदल सकता, उनका वैसा रोल है, पर मुझे हीरो एक्ट प्ले करना है, उनके साथ चलना सीखना है। कभी अपने अंदर जाकर विड्रॉ करके अपने अंदर की दुनिया में बैठ जाइए, अपने से बात कीजिए। कुछ नहीं लेकर आया था मैं, सब यहीं से मिला है। अगर कोई चीजें छूट भी रही है तो गम कैसा, लाया तो मैं कुछ भी नहीं था, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ लेके जाने वाला हूं। जो मिला है उससे मुझे बहुत अच्छा उपयोग करना है, अच्छा कार्य करना है, उपयोग अच्छा करूं। सो विड्रॉ करके अपने अंदर की दुनिया में जाना। कोई बड़ी बातें भी आपको हिला नहीं सकती, नुकसान नहीं कर सकती। You become the seed detached from negative and hurtful situations. You are safe within your own world. अगर ये सारी शक्तियां है ना, तो हम अपने को भी कैसे भी बुराइयों से बचा लेते हैं और दूसरों की बुराइयों को भी खत्म कर देते हैं। इसी शक्ति का गायन है नवरात्रि में देवियों ने असुरों का वध किया। कोई वो असुर व्यक्ति नहीं थे, असुर हमारे अंदर की बुराइयां है। यही वो शक्तियां हैं। अब इसको एक बार समराइज करते, देखिए। आज शक्तियां बताई ना आपको, उसमें पहला सेल्फ के लिए, खुद के इनर सेल्फ के लिए, ताकि मैं अपने आप को हमेशा एलिवेटेड रखूं, ताकि मैं अपने आप को हमेशा अंदर से साफ, प्योर और शक्तिशाली रखूं। उसके लिए 2 शक्तियां काम करती है, पावर टू विड्रॉ एंड पावर टू पैकअप। समेट लेना, विस्तार को अंदर समा लेना। ये मेरे एटीट्यूडनल चेंज के लिए बहुत जरूरी है। तब हम इंटरनली अपने आप को चेंज कर पाते, अपने को कुछ सिखा पाते, कुछ परिवर्तन ला पाते। बहुत जरूरी है ये सेल्फ के लिए, मेरे पर्सनल सेल्फ के लिए। कोई और चीजें आपको मदद नहीं करेंगी। दूसरे लोग आपको सिर्फ सिखा सकते, समझा सकते, पर उसको अपने अंदर की दुनिया में ले जाना, अपने आप से बात करना, ये मेरा काम है। ये सेल्फ के लिए ये 2 शक्तियां बहुत जरूरी है। आज से ही ये अपने आप से शुरू कीजिए। हमारे तो यहाँ पे जो रेगुलर मेंबर्स आते हैं ना, उन्होंने नियम बनाया हुआ है। यहाँ तो हम अपने सेंटर्स पर हर घंटा 1 मिनट निकालते हैं अपने अंदर जाने के लिए। 1 मिनट हमारा एक टाइमर सेट है, वो गीत बजता है, 1 मिनट के लिए बजता है।
सब काम को स्टॉप करके हम अपने अंदर जाते हैं, अपने से बात करते, अपनी रियलिटी से कनेक्ट होते, अपने को साफ करते, अपने को शक्तिशाली बनाते, फिर बाहर आ जाते। हमारे जो मेंबर्स है वो सुनाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जैसे अपने सीट पर जाकर ऑफिस में बैठते हैं, कुछ पल डिटैच होकर आई विड्रॉ इनसाइड, अपने को याद दिलाता हूँ हु एम आई, और मुझे आज अपने प्योरिटी और पावर के साथ काम करना है। साइट पे चक्कर लगा के आके जब जब सीट पे बैठूंगा तब तब आधे मिनट के लिए विड्रॉ करके अपने अंदर चलूं। ऐसे कई तरीके अपनाए हुए हैं। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए विड्रॉ कर लीजिए। अपने आप को सिखाइए, क्या किया आज सारा दिन, क्या सोचा जो मुझे नहीं सोचना था, बेटर तरीके से सोच सकता था, बेटर तरीके से बोल सकता था। विड्रॉ करके अंदर की दुनिया में जाइए। ये सेल्फ के लिए जरूरी। रिलेशंस में मेरे बिहेवियरल चेंज के लिए मुझे चाहिए समाने की शक्ति, दूसरों का व्यवहार संभालूं, सहन करने की शक्ति, अपने आप को एलिवेटेड करूं। जो कुछ आ रहा है सामने से, बट मेरे अंदर एक ही भावना है, उनको लाभ दो, मदद करो, बिकॉज आई एम एलिवेटेड। अपने वर्क प्लेस पे, वर्क के समय पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिसाइड, परख चाहिए मुझे और सही निर्णय चाहिए। और फिर अपने सिचुएशंस के साथ, परिस्थितियों में अपने इमोशंस को शक्तिशाली बनाकर रखना, अपने इंटरनल कॉन्फिडेंस को शक्तिशाली बना के रखना। उसके लिए चाहिए पावर टू फेस, पावर टू कॉपरेट। तो ये है आठों शक्तियां जो मेरे लाइफ को बहुत शक्तिशाली रखती है, कभी कमजोर होने नहीं देती। और ये आती है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए इसे अपने जीवन का अंग बनाइए। चलिए अभी लास्ट में जस्ट फॉर 2 मिनट्स फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, पीठ को सीधी करके बैठ जाइए। और सब बातों से दूर समेट लो अपने आप को। चलो अंदर की दुनिया में, बाहर के इस हलचल से दूर, मेरी अपनी अंदर की दुनिया, मेरी अपनी दुनिया। जिसमें अब मुझे बहुत सुंदर फूल खिलाने हैं, स्वच्छ विचारों के, सबके लिए श्रेष्ठ भावनाओं के, हर एक की बातों को समा लेता हूँ। प्यार है हर एक के साथ, अनकंडीशनल। सब मेरे अपने हैं, चाइल्ड ऑफ गॉड, माय ओन फैमिली। In my elevated stage,
I radiate love. I am a child of God. 3 बार अपने आप से रिपीट कीजिए। अपनी पहचान। ये शरीर तो केवल एक्ट करने के लिए मिला है, इसे तो छोड़ देना है, कॉस्ट्यूम है। लेकिन इसके अंदर जो मैं बैठी हूँ, अपनी पहचान याद दिलाइए अपने आप को। I am a child of God. I am a child of God. A hero actor. With a pure intellect, परख सकता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा भविष्य कल्याणकारी। अब मुझे कोई भी मुझे खराब करने वाली बातों को टच नहीं करना है। I am a child of God. हर एक को अच्छा बनाने में मदद करता हूँ, उनकी बुराइयों को फैलाता नहीं हूँ। I am a child of God. This is my power. कोई भी बात मेरे लिए बड़ी नहीं है। कोई भी बात मेरे लिए बड़ी नहीं है। Because God मेरे साथ है। I am His child. मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदूम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदूम, तूफान से ही तो लड़ दे, खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। रोज सुबह अपने को टाइम देना है ना, पक्का कीजिए अपने साथ। अपने को टाइम देना है 10 मिनट। अपने को सही रीति प्रोग्राम करके फिर सारे दिन में आगे बढ़ना है। मुझे खुशी है आज मैं अपने सामने अपने एक बहुत शक्तिशाली फैमिली को देख रही हूँ, जिनमें शक्ति है, जो वो सोच लेते हैं वो करके दिखा देते हैं, जिनमें शक्ति है ईश्वर की, क्योंकि दे आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। इतने सारे शक्तिशाली अपने परिवार के बीच आने का मुझे मौका देने के लिए हमारे क्रिश्चियन कॉलेज के टीम को बहुत बहुत थैंक्स, और आशा करूंगी कि जरूर ये कुछ 2-3 नियम भी अपने अंदर
धारण कर ले। एक रोज मुझे अपने अंदर समय देना है, सिर्फ अपने को, सिर्फ अपने को। अंडरलाइन करे, सिर्फ अपने को। अपने अंदर की दुनिया को बहुत अच्छा बनाइए। हर एक की बातों को समाना है। बीच बीच में अपना जो भी रूटीन है ना, उसमें अपने आप को विड्रॉ करने की शुरुआत कीजिए। बाकी शक्तियां आती जाएंगी आपके अंदर। शुरुआत कीजिए, पैकअप करो, लेट गो करो पास्ट को, विड्रॉ करके अपने अंदर चलू, क्लीन करो। धीरे धीरे एक एक शक्तियां समाती जाएंगी और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको अपने अंदर याद करते रहिए, विड्रॉ करके। देखिए बाकी चीजें आती चली जाएंगी। थैंक्स टू द सुप्रीम फॉर मेकिंग मी इंस्ट्रूमेंट। उसकी नॉलेज, ये नॉलेज कोई मेरी नहीं है, उसकी नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। और ब्रह्मा कुमारी फैमिली की तरफ से आप सब सदा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, हेल्दी रहे। बहुत दिल की शुभकामनाएं आप सबको, और इन एडवांस नवरात्रि की बधाई, सदा शक्तिशाली बनने की बधाई। हमारी एक फैमिली है, कभी भी आप सबको जरूरत है हम आपके साथ हैं। हमारी सब सेवाएं निशुल्क है। हमारा इसका 7 डेज का फ्री कोर्स होता है। जरूर आप आजकल तो ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन सुन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटर्स पर जा सकते हैं। जब कभी जरूरत है हम सब आपके साथ है, द होल ब्रह्मा कुमारीज फैमिली। थैंक यू once again. Thanks. Hello. Can we take some questions, queries? Sure. Yes, participant, please, if you ask anything, any question, you can ask. Hello. Yes, anybody want किसी to का ask? कोई I think all in relaxed mood. सब Yes. हाँ, Uh, किसी ने पूछा है? Yes. Yes, please. yes, ma'am. Sir, could you share the slides, sir? Yeah, yeah. Yes, That's with the enough. permission of sister, we can Sure, share sure, slide. why not? Yeah. Along with the address and communication, email ID, phone number, that we will communicate anytime, sir. Yeah, yeah. Regarding, sir, yes, sir. So Thank you you, are sir. from which place, sir? Thank you, ma'am. Sir, I am from BITM Bhubaneswar, sir. Odisha. Yeah, yeah. So there are local center, Brahma Kumari local center, so you can contact there also. Okay, sir. आप Fine. वहाँ पे आप इनको व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हाँ, yes, yes. तो हम से जब भी कांटेक्ट करेंगे तो वहां पर हमारा बहुत अच्छा परिचय है, हम उनसे इनका कांटेक्ट करवा देंगे। Okay, thank you, ma'am. ओके, किसी ने पूछा है चैटिंग में कि हाउ टू बैलेंस द वर्क, स्ट्रेस एंड होप। At home also. देखिए जब आपको डिटैच होने का, विड्रॉ होने का आप जैसे अभ्यास करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप स्ट्रेस से भी डिटैच हो जाओ। जैसे अभी मैंने आपको 2 मिनट डिटैच किया ना, आप अपने अंदर की दुनिया में चले, अपने इंटरनल पावर को, अपने इंटरनल पीस को, प्योरिटी को हम टच करते हैं। अपने अंदर प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज को हम 1-2 लाइन भी अंदर रिवाइज करते हैं, तो आप उसकी पावर को टच कर लेते हो और फिर बाहर आइए, तो ऑटोमेटिक आप वर्क स्ट्रेस को भी हैंडल कर पाएंगे। और जब आप घर आएंगे तो भी आप डिटैच हो पाओगे अपने काम के बातों से। ये डिटैचमेंट देह का नहीं है। लोग तो शरीर से तो दूर आ जाते हैं पर बुद्धि से अटैच्ड ही रहते हैं। तो जैसे जैसे आप ये पावर टू विड्रॉ
जो अभी आपको एक्सपीरियंस कराया ना, इसके आप प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अपने को एलिवेट कीजिए, इंटरनल अपने अंदर की दुनिया में जाने की आदत डालिए। ये एक शुरुआती तौर पे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ये आपको शुरुआत करेगा, मदद करेगा बैलेंस बनाने के लिए। तुरंत आप वर्क से डिटैच हो जाओगे, घर से वहां गए तो घर के स्ट्रेस से डिटैच हो जाओगे, कहीं की भी बात हो, 2 मिनट आई पहले बातों से भी डिटैच हो जाओगे, और वो आपको बैलेंस बनाने में मदद करेगा। ओके, There is another query. if we were hearing gossiping till now, how do we withdraw from it? इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप प्रश्न मुझे बताइए, इसका क्या वो पूछना चाह रहे हैं। We are hearing gossiping now. How do we? मैडम अगर आप अभी तक Yeah, हाँ yeah, yeah. Please explain. Yes, हाँ Preeta ma'am. अगर अब अभी तक हम ऑफिस में जब वर्क करते हैं तो कोई कोई बुराई आके कर रहे होते हैं, तो अब हम कैसे विड्रॉ करेंगे? हम बोलेंगे कि नहीं सुनेंगे, तो वो बोलेंगे कि कैसे, अभी तक तो आप बुराई सुन रहे थे, तो अब क्या हो गया? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, हमारे साथ में हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे ना, या हमारे मेंबर्स जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि जो कोई बुराई आकर करता है ना, तो हम उसको एक तो कान से लगाने का नहीं है। जब वो कोई सुना रहे ना, तो आपकी बुद्धि वहां नहीं जानी चाहिए। आपकी बुद्धि में आप सोचो, क्या ठीक है, किसी में कोई है गलती भी तो मेरे में भी है, सब में भी है, मैं उसको मदद करूंगा अच्छा बनाने की। तो जब आप एक पॉजिटिव चीज सोच रहे हो ना, तो वो जो बातें आप सुनोगे ना, वो एक डस्टबिन आपके, वो कचरा आपके अंदर नहीं जाएगा। सुनना तो, कान को तो पर्दे नहीं है ना, ढक्कन नहीं है ना, सुनना तो पड़ जाता है। तो वो एक तो उसका प्रभाव मेरे अंदर नहीं पड़े, तो अंदर जैसे कोई सुनाना शुरू करता है ना, तो अंदर अपने विड्रॉ करके अंदर जाकर सोचो कि ठीक है, कमियां तो होती है, दुनिया में कौन परफेक्ट है, सब में होंगी, मेरे में भी है, हम उसको मदद करेंगे अच्छा बनाने की। तो ऑटोमेटिक वो चीजें आपको अंदर लाने नहीं देगी बातों को। नेक्स्ट, अब जब वो दूसरा व्यक्ति मुझे सुना रहा है ना, तो उसको आप धीरे से प्यार से बोल सकते हो, पर मैंने उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी देखी है, ये उसकी अच्छाई मैंने नोटिस की है। बहुत प्यार से उसको आप मना नहीं करो, उसको ये नहीं करो, पर आप प्यार से उसको टर्न कर सकते हो उनकी बातों को। जब आप उसके बारे में एक भी पॉजिटिव सुना दोगे ना, तो बेचारा वो भी चुप हो जाएगा कि मैं कैसा हूँ, नेगेटिव देख रहा हूँ, ये पॉजिटिव देख रही है। फिर उसकी भी आदत, उसको भी प्रेरणा मिल जाएगी। ओके Yes, please, ओके Dr. Ankita Rajdev, you can ask your question. Thank you, sir. Ma'am, I wanted to ask that, sometimes what happens is that the household also, when we are doing so much, and then we come to hear from different family member that she's not doing this. After doing, like, as per us, we are doing the maximum we can. But still, the people are still, saying, no, she can't do this. She's not doing this. This is not perfect. How to get away with these things? Because even if we are cooking, you are making something, it goes on our mind that, this person said that I cannot do this, still I'm doing this. This keeps on working in your mind, all these things. ओके, ये होता है, बहुत होता है। हमें क्या करना है? देखिए, लोग हमसे हमेशा असंतुष्ट रहेंगे ही। अरे, लोग भगवान से असंतुष्ट है कि भगवान मेरे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता। लोग दुनिया में हर एक, आज मोदी जी इतना देश के लिए कर रहे हैं, तो भी उनसे लोग असंतुष्ट है। अपने आप को याद दिलाना, मैं किस खेत की मूली हूँ। पहले बात तो ये आती है कि पहली बात तो ये आती है कि जो बात मेरे सामने आई है, दूसरे मेरे लिए डिससेटिस्फाइड है, मेरे लिए बहुत सारी बातें कह रहे। पहली बात तो उसको छोटा करो। कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी बात मुझे परेशान कर रही है ना, वो जब अपने से बड़ा कर देते हैं ना, तब मैं परेशान होती हूँ।
पहले तो उसको छोटा करो, कोई बातों को अपने आप से भी छोटा महसूस करूं। जब हम देखते ना, अरे इतने लोगों से लोग असंतुष्ट है, मेरे से भी हो रहे हैं, मैं किसको इतनी मूल्य, बात छोटी लगने लगती है। फिर जब बात छोटी लगने लगती है ना, तब मेरे अंदर पावर आती है उसको ओवरकम करने की। और तब मैं सोचता हूँ, अच्छा ठीक है, अभी ये बात उसको ऐसा लग रहा है, अगली बार उसके लिए मैं ऐसा और कर दूंगा। संडे छुट्टी है ना, तब हम उसको प्लान कर पाते। संडे छुट्टी है, चलो एक दिन और हम छुट्टी लेते और ये चीज कर देते हैं। तब हम एक पॉजिटिव प्लानिंग की ओर बढ़ पाते। जब वो बातें हावी होती है ना, तो हम उसका हल, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। पहले उस बातों को छोटा करो, तब उसका हल निकालना मेरे लिए आसान होता है। एक आध दिन जब छुट्टी पड़ती है, जो उनको चाहिए थोड़ा और वाइड स्प्रेड, उनको जो जो चाहिए खाने में जरा और विस्तार करके दे दूं, और फिर निश्चिंत हो जाइए, मैंने अपना काम कर दिया। नाउ गॉड इज माई फ्रेंड, गॉड से बात करो, ओके आप और मुझे गाइड करना, मैं और क्या क्या करूं। बातों का असर मन पर खत्म हो जाएगा। आप उस बात को पहले छोटी करो, ठीक है। Yes, और ma'am. जैसे Yes. जैसे आप पॉजिटिव खाने में वाइब्रेशन डालते जाओगे ना, वो खाएंगे, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये वाइब्रेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। और हमारा आगे के भी कोर्सेज है जो आप जरूर जब सुनेंगे तो एक एम्पावरमेंट आएगी, और वो पावर उसमें ऐड करते जाओगे। इन चीजों से हम जरूर आशा करेंगे, मदद करेंगे, आप इससे भी पार हो जाए। ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू। अच्छा, Yes. किसी ने पूछा है, मैम यू टोल्ड टू टॉलरेट, बट अप टू व्हाट लेवल, बिकॉज टॉलरेटिंग मोर वोंट वर्ल्ड वुड लुक एट यू। हाँ देखिए, आप जब सहन कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि दुनिया फिर आपकी तरफ देखेगी नहीं, शायद ये आपका प्रश्न है। आप, हमारी जो सहन करने की शक्ति है ना, इन रिटर्न जब मैं सहयोग दे रहा हूँ, इन रिटर्न जब मैं ये कर रहा हूँ, सामने कोई हो सकता है आपको एक्सेप्ट नहीं करे, आपका मजाक भी उड़ाए, आपको कमजोर भी समझे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो अकेले में बैठेगा ना, तब जब भी उसके ऊपर परिस्थिति आएंगी ना, गारंटी उसे आप ही याद आओगे। सामने व्यक्ति का ईगो जो है ना, आपको स्वीकार नहीं करने देगा। हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, आपको कमजोर समझे, लेकिन जब वो अकेले में बैठेगा ना, तब उसे अपने आपकी ताकत की महसूसता होगी। हर एक व्यक्ति ऐसे लोग से जुड़ना चाहता है, और तब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। इसलिए टॉलरेट अप टू व्हाट लेवल नहीं, कीप योरसेल्फ एलिवेटेड। मैं कौन, आई एम नॉट डिपेंडेंट। दूसरे मेरे को क्या बोल रहे, बोलते रहे, जो बोलना उनकी समझ से बोल रहे। मैं परवाह तब करती हूँ जब मुझे चाहिए। इसका कभी और आपको एक सेशन लेंगे, आप कभी इस चीज को सुनिएगा कि हमें दूसरों से क्यों चाहिए, वो मेरे लिए अच्छा बोले, अच्छा करे। हमारे अंदर अगर पॉजिटिविटी की लाइट, रोशनी है, ताकत है, मेरे घर में, मेरे कमरे में एसी है, तो मैं बाहर डिपेंडेंट नहीं हूं ना हवा के लिए। मैं बाहर डिपेंडेंट तभी होता हूं जब मैं खुद अपनी एसी नहीं चलाता। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर अंदर से आप खाली हो ना, इसलिए कहती हूँ रोज सुबह अपने आप को टाइम दो, अपनी इनर वर्ल्ड को क्लीन करो, पावरफुल बनाओ। अगर अंदर से इनर वर्ल्ड मेरा खाली है ना, और आप बाहर डिपेंडेंट हुए, दूसरे मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अच्छा देना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने बाहर के लिए अपनी खिड़की खोली, तो हवा के साथ धूल भी आएगी, मिट्टी भी आएगी, लेना पड़ेगा। इसीलिए अपने को एम्पावर करना, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एक और लास्ट किसी ने पूछा है, मैम एक्चुअली वी आर हियरिंग अबाउट दिस ऑल पेंडेमिक एंड कोरोना, बट मेनी ऑफ अस आर फियरिंग अबाउट दिस, सो व्हाट विल बी द थिंकिंग पैटर्न इन दीज डेज। देखिए, सबसे पहले तो आप रोज शाम को 5 मिनट, हम सब करते हैं महीनों से, 5 मिनट बैठ कर
जितने इस पैंडेमिक से ग्रस्त लोग हैं उन सब को मेंटली गुड विशेस भेजिए कि आप सब अच्छे हो। जिन परिवारों से लोगों का देहांत हुआ है, गुड विशेस भेजिए, पावरफुल विशेस भेजिए। गॉड उनको आप पावर दो। आप दूसरों को रेडिएट करोगे ना, आप डर से दूर हो जाओगे। दिस इज द इजीएस्ट वे। और फिर मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जहां हम अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा, एक पावर ले पाते हैं। और ये बुराइयां मुझे, ये वायरस मुझे टच नहीं कर पाएगा। प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं, डर से नहीं, नॉलेज से। तो इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए मैं शॉर्ट में बस इतना ही कहूंगी कि आप रोज 5 मिनट दूसरों को आप रेडिएट कीजिए गुड विशेस और पावर। आप खुद उस डर से दूर हो जाएंगे और फिर मेडिटेशन से अपने चारों ओर एक प्योर कवच बनाइए। इसके लिए आप हमारे YouTube में आप सर्च कर सकते हो कोरोना टाइम के लिए मेडिटेशन। तो वो आपको गाइडेड कमेंट्रीज पे मेडिटेशन के लिए मिल जाएगी। जस्ट 10 मिनट्स की, 5 मिनट्स की कमेंट्री से वो आपको मदद करेगी। ओके Okay, now there are no more questions. So first of all, on behalf of Department of Mechanical Engineering, Christian College of Engineering and Technology, Bhilai, I, Dr. R.H. Gajgat, would like to thank you all for accepting. Thank you for accepting our invitation and agree to conduct this session. I am very much thankful to you for sparing your valuable time and sharing your spiritual knowledge and experience with us. Your session was very interesting and useful for all human beings. You have explained well how inner power can be recharged by recognizing our inner strength and with the help of meditation and yoga. Definitely, all participants will be benefited by this session. Also, I would like to thank all the participants for joining and listening the whole session with lot of patience. Thank you all again. Thank you, sister. थैंक यू। Thank